Hello, myself Dr. Nidhi. Today we are going to discuss a very important topic. Both clinically it is important as well as for the question point of view it is important. You get many questions from dyselectrolemia, and today we are reading a very important electrolyte, that is hyponatremia. Okay, hyponatremia is very important, conceptually very important, है ना? And once you get to know about it, you will be very confident and you will feel very good about it, है ना? If something is logical, then you feel very good about knowing about it. ठीक है? So we'll start with the case scenario, because these days both NEET PG and even next, है ना, they are focusing more on of clinical scenarios. Of course, medicine is all about clinical scenarios. So we comes to a case scenario. Even you will see a patient, you will see a case scenario. ठीक है? Try to focus on each and every point. I will highlight what is most important, but try to focus, है ना? We said we were sitting in the emergency and a 72-year-old male came with a complaint of fever, chills from last 5 days, and the cough was purulent, right? तो we thought अच्छा ठीक है भाई, we are dealing with some respiratory case, ठीक है, इसको क्या होगा, URTI होगा, LRTI होगा. हमने कहा ठीक है भैया, ले आओ पेशेंट. ठीक है, तो then he said no, don't take us so lightly. Last 2 days he has a rapidly progressing shortness of breath, and one of the attendants suddenly said, like he had thrown just 30 minutes back when we were rushing the patient towards the hospital, that he threw 2 episodes of seizure, and he didn't regain the consciousness. He didn't talk to us in between, and he was like this only from like last 1 hour, and now we have brought it to you. And then one of the intelligent intern asked कि क्या इसको पहले से हिस्ट्री थी सीजर की. देन उसके अटेंडेंट ने कहा नो, ही हैज़ नेवर थ्रोन सच सीजर्स एवर इन लाइफ. सो अब तक हमने 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें इस केस में देखी. एक तो ओल्ड एज पेशेंट है, ठीक है. दूसरा हमने देखा कि ठीक है भाई, और कुछ की शॉर्टनेस बहुत बहुत रैपिडली प्रोग्रेस कर रही है. तीसरा हमने देखा कि सीजर है पर कोई पास्ट हिस्ट्री नहीं है सीजर डिसऑर्डर. दीज आर रियली रेलेवेंट पॉइंट्स. ठीक है, तो हमने कहा ठीक है, ये सब तो जस्ट फाइन. हमने कहा ठीक है, जस्ट लेट्स मूव अहेड. एंड वी सेड कि ठीक है, जस्ट like very rapidly we put the vitals and we found that it is of course patient is in hypotension, tachycardic saturation was not maintained. We fatafat we put the NRBM, it was still 80%. Patient was highly tachypneic. Of course GCS is poor, patient is in post-ictal state. Then we auscultated fastly and we found that there are core scripts. We were sure that there is something bad about the respiratory system. कुछ तो हुआ है respiratory system के साथ, है ना. And then we did in a routine practice we did a RBS also, है ना, and it came out to be 292. Then we asked for a past medical history of, he said patient is old age, patient had hypertension में उसको furosemide चल रही थी, CAD था उसको, CAD में stenting हो रखी थी उसको लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी की 5 साल पहले, and he is diabetic. ठीक है, तो हमने कहा ठीक है. Then we said कि यार every point that patient has hypertension, patient is on furosemide, diabetic patient, CAD, all are relevant to us. How are they relevant? What is the question mark? This is all about our chapter. We have to solve these questions at the last. If we are able to solve it, we are at a very good place. ठीक है. Now what we did all the investigation. कि हमने कहा कि ठीक है, थोड़ा बहुत स्टेबलाइज करा हमने, फिर हमने इसकी ABG निकाल ली. ठीक है, ABG निकाली तो ऑफकोर्स हमें मेटाबॉलिक एंड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस मिला, विच वॉज एक्सपेक्टेड. CBC रेज था, ESR रेज था, CRP रेज था, इन्फेक्शियस डिजीज है, ऑफकोर्स रेज्ड होगा. फिर हमने कहा ठीक है, LKS करा लेते हैं, माइल्डली रेज थे. योर LFT वॉज माइल्डली रेज, KFT नॉर्मल था. देन वी केम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एक किसी इंटेलिजेंट बंदे ने देखा कि यार सोडियम तो 110 ही है ना. देन एक और बंदा बोलता है नहीं पोटाशियम तो ठीक है. तो व्हाट इज सिग्निफिकेंट हेयर कि सोडियम इज जस्ट 110 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर, है ना. ओके, एंड वी सेड अच्छा व्हाट इज द नॉर्मल सोडियम वैल्यू. एवरीबडी नोज इट. नॉर्मल, व्हाट इज नॉर्मल सोडियम वैल्यू? इट इज़ 135 to 145 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर. ठीक है, एवरीथिंग कम्स विद अ सरनेम, सो एज द सोडियम. सो यू नेवर फॉरगेट राइटिंग, डोंट फॉरगेट द यूनिट्स, particularly for the 4th year exam. Everybody is very concerned about units. You have not talked about units. Please speak units in the viva. It's like hell important for them, right?
देन मी क्या डिड कि भाई प्रोकैल कराया, ट्रॉपाई कराया, प्रोबीएनपी कराया। ऑफ कोर्स एक पेशेंट है जो कि सीएडी का है, तो हमने सोचा ट्रॉपाई प्रोबीएनपी तो करा ही लेते, कार्डियक मार्कर हो जाएगा। ईसीजी में पास सीएडी के चेंजेस थे, कुछ नया था नहीं, ठीक है। फिर हमने कहा कि ठीक है एक प्लाज्मा कीटोन भी करा लेते, पेशेंट डायबिटिक है, थोड़ा शुगर भी हायर साइड पे, ऑल दो डीके की रेंज में नहीं है, आई एग्री, बट वी डिड अ प्लाज्मा कीटोन्स विच केम आउट टू बी नेगेटिव, राइट। देन वी डिड अ एक्सरे। एक्सरे में हमने देखा चलो यार हम तो सही सोच रहे थे, कंसोलिडेशन तो बंदे को है, ठीक है। तो हमने कहा इसको क्या है, कंसोलिडेशन है। कहाँ पर दिख रही है आपको, है ना, आपको कहाँ पे दिख रही है, राइट, ऑफ कोर्स दिस इज लेफ्ट बिकॉज देयर इज एपेक्स ऑफ द हार्ट, राइट लोअर लोब में हमें कंसोलिडेशन दिख रही है, ठीक है। हमने कहा ठीक है फाइन, राइट लोअर लोब में कंसोलिडेशन दिख रही है, ठीक है। उसी बात हमने सीटी कराया, उसमें भी सेम ही दिखा। तब हमें अब हम क्या, अब तक का केस सिनेरियो में आपको क्या क्या समझ आया। हमें चार चीज़ें समझ में आई कि एक रेस्पिरेटरी केस था, राइट, जो कि सीजर के साथ प्रेजेंट किया हमारे पास, राइट, यानी कि सीएनएस सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट किया। सिग्निफिकेंट चीज़ तो मुझे अभी तक यही समझ आई, ठीक है उसका। और हमें तीन हिस्ट्री सिग्निफिकेंट समझ आई कि पेशेंट डायबिटिक है, अभी उसका आरबीएस 292 है, हाइपरटेंसिव है पेशेंट, फ्यूरोसेमाइड पे है, ठीक है, ये भी हमें समझ आया। और फिर हमने कहा कि एक सीएडी का भी पेशेंट है ये, है ना, स्टेंटिंग इसकी हो रखी है। दीज थ्री मतलब वी कंक्लूडेड दीज थिंग्स, है ना। रेस्पिरेटरी केस है मतलब पेशेंट को निमोनिया तो फॉर श्योर है ही, और वो सीबीसी बता ही रही है। इसके बाद जो हमें बोल्ड लेटर्स में लिखना चाहिए वो हमें ये समझ आए कि यार सीरम, वेट अ मिनट, ठीक है, कि हमने सबने आपस में सोचा कि सीरम सोडियम हम जो बोल्ड लेटर्स में लिखना चाह रहे हैं वो ये है कि 110 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर है, जो कि कोई भी, है ना, एनी इंटर्न, एनी क्लिनिशियन विल से कि यार कुछ ज़्यादा ही कम है ना। इफ़ 135 इज़ नॉर्मल देन 110 इज़ अ रिलेटिवली वेरी लेस, है ना। अब हम देखेंगे व्हाट इज़ द सिवियरिटी एंड व्हाट ऑल, बट अभी हमें यही समझ आया, ठीक है। फिर हमने सोचा यार एक निमोनिया था, उसको सीजर क्यों आएंगे, तो भाई जैसे कि हमारे प्रोफेसर एंड एवरीबडी आस्क यू क्वेश्चन एंड दे वांट कैटेगोरिकली लाइन बाय लाइन आंसर, है ना। तो हमने कहा चलो ठीक है वैसे ही बता देते हैं कि सर देखो एक निमोनिया का केस है, उसको सीएनएस सिम्टम्स इन 5 कारणों की वजह से आ सकते हैं। या तो ये निमोनिया विद मेनिंजाइटिस था, देयर इज सम ऑर्गेनिज्म जिसने निमोनिया भी कॉज किया, मेनिंजाइटिस भी कर दी, सर ऐसा हो सकता है, तो उसको सीएनएस सिम्टम सीजर को थ्रो कर सकता है। एंड इट इज मतलब लाइक आई जस्ट वांट टू टेल यू एज ए एड ऑन, ठीक है, कि अलोन मेनिंजाइटिस विल नेवर थ्रो अ सीजर, it should be encephalitis to throw a seizure, right? Meningitis is the inflammation of meninges, ठीक है। Just as an add-on, है ना, we will of course discuss it in when we will discuss the CNS, है ना। Encephalitis is the inflammation of brain tissue, ठीक है। Seizure can only be thrown when there is something wrong about the brain tissue, ठीक है। this is important, not मतलब like it's relevant here, so I told you, ठीक है। देन हो सकता है पेशेंट को हमारे पास आया, हमने 80% एनआरबीएम पे लगाया, तब भी पेशेंट का सैचुरेशन एनआरबीएम पे लगाने के बाद भी 80% आ रहा था, तो इसका मतलब पेशेंट को हो सकता है बहुत टाइम से हाइपोक्सिया हुआ हो, और पेशेंट को हाइपोक्सिया होने की वजह से उसको सीजर आ गए हो, ठीक है। अब डायबिटिक पेशेंट है, हो सकता है हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से आया, जो कि हम रूल आउट कर चुके हैं, ऑफकोर्स आरबीएस हमारा 292 आ गया है, ठीक है। चौथा हमने सोचा कि चलो एसिडोसिस हो सकता है, जो कि ऑफकोर्स आया भी है, ठीक है। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें चिल्ला के शुरू से बोल रही मैं हूँ, वो है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, है ना। और उसमें भी सोडियम का इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस वो बोल रहा है, हमें तब से बोल रहा है वो, ठीक है, कि सोडियम का हाइपोनेट्रीमिया तो इसको है, ठीक है। तो हमारी कन्फ्यूजन कुछ तो कम हुई, हम इस क्वेश्चन से यहाँ तक तो पहुँचे कि इसको हाइपोनेट्रीमिया तो है। अब किसी इंटेलिजेंट बच्चे ने पूछा कि मैम हाइपोनेट्रीमिया तो ट्रू भी होता है, हाइपोनेट्रीमिया तो सूडो भी होता है ना। तो हमने सोचा चलो अब हम डिस्कस करते हैं। कुछ भी समझने से पहले हमें 4-5 चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स नॉट हरी अप फॉर एनीथिंग, ठीक है। लेट्स स्लोली ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। एक वर्ड आप लोगों ने सुना होगा ऑस्मोलैलिटी,
केमिस्ट्री में भी सुना होगा, है ना। ऑफ कोर्स ऑस्मोलैरिटी भी सुना होगा, विच इज़ नॉट दैट सिग्निफिकेंट इन आर केस, ठीक है। तो ऑस्मोलैरिटी हम डिस्कस नहीं कर रहे। दूसरा वर्ड आपने बहुत सुना होगा, टोनिसिटी। जब भी हम सेल में वाटर शिफ्टिंग की बात करते हैं, कुछ भी बात करते हैं, तो हम यही बोलते हैं कि भाई जो फ्लूइड है वो हाइपोटोनिक था या फिर हाइपरटोनिक था, है ना। और कभी बोलते हैं हाइपोऑस्मोलर था, कभी बोलते हैं कि हाइपर ऑस्मोलर था। भाई किसी के भी दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि इन दोनों में फ़र्क क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू, कि ऑस्मोलैरिटी और टोनिसिटी में फ़र्क क्या है। सबसे पहले ऑस्मोलैरिटी का जो फॉर्मूला हम सबको पता है वो क्या है। ऑस्मोलैरिटी का जो फॉर्मूला हम सबको पता है वो क्या है, ठीक है। वो क्या है, 2 × सीरम सोडियम, तो सबको पता होता है ना। प्लस क्या है, ग्लूकोज, ठीक है, अपॉन 18 प्लस ब्लड यूरिया नाइट्रोजन अपॉन 2.8। दिस इज़ द पॉपुलर फॉर्मूला फॉर ऑस्मोलैरिटी टू कैलकुलेट ऑस्मोलैरिटी, ठीक है। क्या क्या हुआ, ऑस्मोलैरिटी इज 2 टाइम्स द सीरम सोडियम प्लस ऑस्मोलैरिटी इज 2 टाइम्स द सीरम सोडियम प्लस ग्लूकोज बाई 18 प्लस ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बाय 2.8, ठीक है। दिस इज़ द कॉमन फॉर्म। फिर हमने सोचा कि अच्छा ये तो ऑस्मोलैरिटी है, ठीक है। हमें पता है नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी हमारी क्या है ब्लड की, सबको पता है 285 to 290 मिली ऑस्मोल्स पर kg ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर। ये हमारी नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी है। तो किसी ने बोला कि भाई ठीक है हम ऑस्मोलैरिटी की बात किए जा रहे हैं, टोनिसिटी क्या है। टोनिसिटी क्या है, इट इज़ अफेक्टिव ऑस्मोलैरिटी। और हमारी बॉडी में हाइपोटोनिसिटी, हाइपरटोनिसिटी मीन्स टोनिसिटी का बहुत ज़्यादा रोल है, ठीक है, क्योंकि यही मेन है, ठीक है। अफेक्टिव ऑस्मोल्स आर द मेन थिंग विच विल कॉज वाटर शिफ्टिंग इनटू द सेल्स, आउट ऑफ द सेल्स, ठीक है। हमने कहा कि अफेक्टिव ऑस्मोलैरिटी है, तो इसका मतलब क्या होता है अफेक्टिव ऑस्मोलैरिटी, कौन बनाता है अफेक्टिव। तो कह रहे हैं कि 2 तरह के सॉल्यूट्स होते हैं। किसी भी सॉल्यूशन में हमारे पास एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है, ठीक है। अब सॉल्वेंट तो हमारे को हमें पता ही है कि सॉल्वेंट कौन है हमारा, है ना। सॉल्वेंट तो हमारे प्लाज्मा ही है ना। सॉल्यूट्स हमारे कौन कौन है, कह रहे सॉल्यूट्स 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है अफेक्टिव सॉल्यूट, अफेक्टिव सॉल्यूट, एक होते हैं इनअफेक्टिव सॉल्यूट, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, देखो यार, ये सेल है, ठीक है, ये ब्लड है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो भी आप मान लो, ठीक है। अब इस ब्लड में ये सेल है, ठीक है, इस ब्लड में जो है ये सपोजिटली एक अफेक्टिव सॉल्यूट है, ठीक है। ऑफ कोर्स बाकी सारा प्लाज्मा है, ठीक है। अब अफेक्टिव सॉल्यूट है तो क्या करेगा, इट कैन नॉट क्रॉस द मेम्ब्रेन ईजिली, है ना। इट इज सेमी परमिएबल टू मेम्ब्रेन, whosoever is freely permeable to lipid membrane। आ रही बात समझ में, जो भी कोई फ्रीली परमेबल है ना लिपिड मेम्ब्रेन के, मान लो ये चीज़ है, ये दरवाज़ा है ना, एक बंदा है, मतलब 4 लोग ऐसे हैं कि जिनको बहुत परमिशन है घर के अंदर जाए चाहे बाहर जाए, घर के अंदर जाए चाहे बाहर जाए, तो उनको कोई ज़्यादा तकलीफ़ नहीं है, उनकी वजह से हमें कोई तकलीफ़ नहीं होगी, वो परमिटेड है, ठीक है, आए बाहर जाएँ, आए बाहर जाएँ, तो वो कोई रेगुलर चीज़ कर ही नहीं सकते, कभी वो आए, कभी वो आए, कभी वो आए, कभी वो आए। तो सिमिलरली अफेक्टिव सॉल्यूट, इनअफेक्टिव सॉल्यूट्स आर दोज हु कैन ईजिली फ्रीली पास द मेम्ब्रेन, ठीक है। अफेक्टिव सॉल्यूट कौन है, मतलब बात की किसकी वैल्यू है, बात की उसकी वैल्यू है जो जिसने जो डिसाइड किया उस पर अड़ा रहे, है ना। तो अफेक्टिव सॉल्यूट इज समथिंग कि भाई धरने पे बैठा है तो बैठा ही है, ऐसा नहीं कभी इस जगह फ़ायदा दिखा तो इधर, इस जगह फ़ायदा दिखा तो उधर, और फ्री है एकदम, कोई कंडीशन ही नहीं है उसके ऊपर। ऐसी इफेक्टिव सॉल्यूट वो है जो ईजिली
किसी भी मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, है ना। तो वो क्या करेंगे, कहीं की ऑस्मोलैरिटी को बढ़ाएंगे, तो क्या करेंगे, वो वाटर शिफ्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ऑल दो सॉल्यूट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर शिफ्टिंग इज called effective solute and they will form the tonicity of the any fluid or any compartment, right। तो effective solute जो हमें पता है, जो वो कौन कौन है, हमें पता है वो है ग्लूकोज, ठीक है, मैनिटोल, ये सबको पता है, ठीक है। ऑफ कोर्स इसमें एक ग्लाइसिन भी है। ये तीन अगर आप याद रखोगे, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्टिव सोल्यूट्स है और ये बहुत सिग्निफिकेंट वाटर शिफ्ट कराते हैं। मैनिटोल आपको पता है ड्रग भी है, जो कि मतलब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, इडीमा वेन आउट करने के लिए हम बहुत जगह यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स ग्लूकोज। जब हम ये समझ जाते हैं कि अफेक्टिव सोल्यूट क्या है, इनफेक्टिव सोल्यूट क्या है, टोनिसिटी क्या है, ऑस्मोलैरिटी क्या है, जब हमें ये समझ आ जाता है, ठीक है, तब हम आते हैं इससे भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। हमने ये वाला तो देख लिया, ठीक है। हम आते हैं जो उस समझदार से बच्चे ने पूछा था कि मैम आपको कैसे पता कि ट्रू हाइपोनेट्रीमिया है, ये सूडो हाइपोनेट्रीमिया भी तो हो सकता है, उसके लिए उसने कभी ये वर्ड सुना होगा। तो हमने कहा सही बोल रहे हैं बच्चा, ट्रू हाइपोनेट्रीमिया और सूडो हाइपोनेट्रीमिया में भी फ़र्क होता है। हमने कहा हमारे पास एक पेशेंट आया जिसने कहा भाई मेरे को हाइपोनेट्रीमिया है, जैसे कि ये वाला पेशेंट आया जो खुद ही कह रहा है मेरे को सीरम सोडियम 110 है भाई, ठीक है, 110 मिली इक्विवेलेंस पर लीटर है, ठीक है। तो हमने कहा हमें देखना है भाई तुझे सूडो है कि ट्रू है। तो उसने बोला सिंपल है, क्या क्या कराओ मेरे लिए, सीरम सोडियम तो आप लोगों ने ऑफ कोर्स करा ही लिया, तो सीरम सोडियम इज़ लेस, ठीक है, इट इज़ डिक्रीज्ड, ठीक है। उसके बाद व्हाट एल्स, एक सीरम ऑस्मोलैरिटी भी करा लो, ठीक है। तो कह रहा है वो भी डिक्रीज्ड आई, ठीक है, यानी कि इट इज़ हाइपोटोनिक हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है। आपने सीरम ऑस्मोलैरिटी कैलकुलेट कर ली, सीरम सोडियम निकाल लिया और सीरम ऑस्मोलैरिटी भी कम है, सीरम सोडियम भी कम है, तब हमने बोला इट इज़ हाइपोटोनिक हाइपोनेट्रीमिया, ओके वी सेड फाइन। और उसने बोला कि तीसरा एक और स्टेप फॉलो कर लो भाई, वैसे तो इट इज़ वेरी रेयर ना कि हमने किसी को मैनिटोल या ग्लाइसिन दिया हो, पर डायबिटिक होना पेशेंट का इतना रेयर नहीं है ना। डायबिटीज़ इज़ अ वेरी प्रेवलेंट डिजीज़ इन इंडिया एंड ऑलवेज टेक अ हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ फॉर अ पेशेंट who seems to you to be a patient of hyponatremia। तो आपने कहा कि एक ना RBS करा ही लो, ठीक है, आपने एक RBS भी करा लिया और डायबिटीज़ की हिस्ट्री भी आपने उससे पूछ ली, राइट, ठीक है। अब आपने जब ये तीनों पॉइंट्स कवर कर लिए, यही हमने उस स्लाइड में लिखा हुआ है कि आपने सीरम सोडियम 110 पूछा, उसने बोला सीरम ग्लूकोज 292 to 298 जितना भी आप क्वेश्चन में बताया था, और सीरम ऑस्मोलैरिटी आपकी 230 है। 230 मीन्स इट इज़ लेस, वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट नॉर्मल सीरम ऑस्मोलैरिटी, आई हैव टोल्ड यू ना जस्ट नाउ दैट नॉर्मल सीरम ऑस्मोलैरिटी इज़ 285 to 290 मिलीओस्मोल्स पर kg ऑफ वाटर, ठीक है। एंड यू नो, so serum osmolality of 230 is less, serum sodium 110 is less and serum glucose is 292। now let's see how will we prove what। आपने डीके के चैप्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी होगी, डीके सबने पढ़ा होगा, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, है ना, इट इज़ अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़, एक्यूट कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़, और ये बात याद रखने की है एंड यू रिमेंबर इट ऑलवेज, ठीक है, कि with every 100 mg per deciliter increase of glucose will cause 1.6 milli equivalents per liter of fall in sodium, ओके। तो इसका क्या मतलब हुआ, इस स्टेटमेंट का खुद से मतलब हुआ कि
ये स्टेटमेंट का खुद से मतलब हुआ कि ये आपका सीरम ग्लूकोज कैन बी द रीज़न ऑफ हाइपोनेट्रीमिया, राइट? क्योंकि हर 100 mg पर डेसीलीटर, लोगों का 500-600 भी आता है, हर 100 mg पर डेसीलीटर से 1.6 को आपको वो बताना है। अगर मान लो मेरे पास कोई पेशेंट है, उसका सीरम जो ग्लूकोज है, ठीक है, उसका ग्लूकोज 500 आया, राइट? ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगी कि 1.6 इंटू 3 तो कितना हुआ, 4.8 तक हमारा फॉल कर सकता है। ठीक है, अब हमने बोला कि हमारे पेशेंट का 292 था, ठीक है, तो और हमारे पेशेंट का सीरम सोडियम 110 था। 110 का क्या मतलब है, 110 मिली इक्विवेलेंस का क्या मतलब है कि 135 से कितना कम हो गया, 25। कैन एनी फॉल, कैन दिस मच राइज ऑफ ग्लूकोज कॉज 25 मिली इक्विवेलेंस पर लीटर ऑफ फॉल? नो, दैट सजेस्ट ऑल द 3 points suggest के the patient is having true hyponatremia, that is hypotonic hyponatremia. So we will just recapture, मतलब we have a recap, है ना, of what we have already studied. There was a case scenario we said कि जिसमें पेशेंट एक रेस्पिरेटरी केस था, वो प्रेजेंटेड विद CNS सिम्टम्स, ऑफ कोर्स पेशेंट प्रेजेंटेड विद सीजर्स। सो हमने सोचा कि क्या क्या रीज़न हो सकता है। हमने बोला एनकेफेलाइटिस हो सकता है, हमने बोला एसिडोसिस हो सकता है, हाइपोक्सिया हो सकता है, फिर बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा सीरम सोडियम भी 110 था, तो हमने सोचा हाइपोनेट्रीमिया ही इसका कॉज रहा होगा। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास और तो कोई सिग्निफिकेंट फाइंडिंग हमें दिखी नहीं थी। हमने बोला था कि डायबिटिक के पेशेंट हाइपरटेंशन में CAD है। फिर हमने बोला कि ठीक है, हमें ऑस्मोलैलिटी और टोनिसिटी में डिफरेंस समझ में आ गया, ऑस्मोलैलिटी का फॉर्मूला समझ आ गया, है ना। टोनिसिटी इज इफेक्टिव ऑस्मोल्स, व्हाट आर इफेक्टिव ऑस्मोल्स, व्हाट आर इनइफेक्टिव ऑस्मोल्स हमें समझ में आ गया। जो वाटर शिफ्टिंग में पार्टिसिपेट करते हैं दैट आर इफेक्टिव ऑस्मोल्स, जो नहीं करते हैं वो इनइफेक्टिव ऑस्मोल्स हैं। जो हमारे मेनली 3 ग्लूकोज, मैनिटॉल और ग्लाइसिन्स आर द 3 मेन इफेक्टिव ऑस्मोल solutes, effective solutes which you need to remember, है ना। नॉर्मल ऑस्मोलैलिटी की वैल्यू भी सबको पता लग गई, 285 to 290 मिली ऑस्मोल्स पर kg ऑफ वाटर। ठीक है, तब हमने पढ़ा कि ठीक है, हमें इतना समझ आ गया। तो अब हमारे पास कोई ये एक रूल बना लो, कोई हाइपोनेट्रीमिया का पेशेंट आए तो 3 काम तो तुमको करने ही है। एक तो सीरम सोडियम, दूसरा सीरम ऑस्मोलैलिटी, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम कि सीरम ग्लूकोज चेक करो, RBS करो उसका। ठीक है, ये सब करने के बाद हमने देखा कि व्हाट इज़ ट्रू हाइपोनेट्रीमिया, व्हाट इज़ सूडो हाइपोनेट्रीमिया, एंड सूडो हाइपोनेट्रीमिया क्यों होता है कि वाटर शिफ्टिंग की वजह से होता है। लेट्स जस्ट डिस्कस इन शॉर्ट कि सूडो हाइपोनेट्रीमिया क्यों होता है। ठीक है, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सूडो हाइपोनेट्रीमिया कि बेसिकली दो ही कॉज होते हैं। ठीक है, दूसरा थोड़ा लेबोरेटरी है, टेक्निकल है ना। बट जो मेन जो कॉज है वो ये है, जिसे हम ट्रांसलोकेशन हाइपोनेट्रीमिया भी बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसलोकेशन क्यों बोल रहे भाई, क्योंकि शिफ्टिंग ऑफ वाटर की वजह से हो रहा है बेसिकली, है ना। अगर हमारे पास, हमें पता है कि ये हमारा ब्लड है और यहाँ पर ऑस्मोलैलिटी बढ़ गई है, तो वाटर रिलेटिवली क्या हो गया, कम हो गया। तो वाटर विल शिफ्ट फ्रॉम सेल टू हेयर, है ना। वाटर शिफ्ट करेगा, यहाँ पे वाटर शिफ्ट करेगा, तो सीरम सोडियम एक्चुअली में तो उतना ही है जितना है। सीरम सोडियम में शिफ्टिंग हुई नहीं, वाटर में शिफ्टिंग हो गई। वाटर में शिफ्टिंग हुई तो सीरम सोडियम रिलेटिवली कम हो गया। ठीक है, तो ये ऑस्मोलैलिटी कौन बढ़ा सकता है, ग्लूकोज बढ़ा सकता है, मैनिटॉल बढ़ा सकता है, हमने अभी भी पढ़ा, और ग्लाइसिन बढ़ा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये इफेक्टिव ऑस्मोल्स हैं। ठीक है, इन्होंने हमारे वाटर को शिफ्ट कराया, इसलिए इन्होंने, इनका तो जो हुआ वो हुआ, सीरम सोडियम कम हो गया। ठीक है, तो सीरम सोडियम कम हो गया, यू गॉट इट। उसके बाद फिर हमारे को क्या है, एक कॉज, 2 कॉज और याद रख सकते हैं हम, हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया एंड हाइपर पैराप्रोटीनीमिया। ये एक्चुअली में मतलब जिससे जिस प्रोसीजर से हम सीरम सोडियम कैलकुलेट करते थे पहले, उसकी वजह से, उस मेथडोलॉजी की वजह से होता था।
अब नहीं होता है, अब वैल्यू सही आती हैं, सो इट इज़ नॉट अफेक्टेड. बट theoretically somebody can ask you that hypertriglyceridemia, hyperparaproteinemia can also be causes of the pseudohyponatremia. So if somebody asks you the causes of pseudohyponatremia, तो मैं बहुत क्लियर होना चाहिए कि भाई कोई डाउट ही नहीं है कि भाई या तो अफेक्टिव ऑस्मोल्स है ब्लड में, जैसे कि ग्लूकोज, जैसे कि मैनिटोल है ना, जैसे कि ग्लाइसिन, या इसकी वजह से वाटर ट्रांसलोकेशन हो रहा है और कोई दिक्कत है ही नहीं, सोडियम ठीक है जैसा है वैसा ही है, या फिर हमारा hypertriglyceridemia, hyperparaproteinemia, which is very unlikely to happen these days. Okay, we will continue in the other recording.